Good evening, everyone. So my screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So any doubt from the previous class? We started off with tablets. Then we did what are the tablets, what are excipients. Then later we did the classification of tablets. So any doubt in those previous slides? I'll share the slides with you today. So you can go through it and we can discuss more doubts if you have any in Sunday class. Okay. Yes, meanwhile, I gave you two questions, right? So let's just for 5 minutes, let's just go through it. Anyone want to voluntarily tell the questions and the respective answers? Apart from the same Pranav, Shivam, and yes, anyone? The one question was about the pH, okay?
And the second one was about the control and sustained release difference. So first we'll discuss about the pH. Anyone wants to volunteer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me your name. Ma'am, I am Amir, ma'am. Sorry? You go ahead. Yes. Hello, The other ma'am. one, yes, yes. Hello, ma'am. Speak. Yes. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Ma'am, the pH of skin is around 5 to 5.5. Okay. Yeah, we have pH of stomach is around 1.5 to 3.5. Right. For blood, Tears. we have 7. For blood, for Oh tears, yeah, go 6. on, go on. For blood, we have around 7.35 to 7.45. Okay. For tears, we have 6.5 to around 7.5. Right, right. What And for about saliva? saliva, we have about 6.2 to around 7.6. Average is Oh, we have average 6.8 for saliva. okay, yeah, yeah, yeah. Perfect. Right. और you know that कि हमारा जो इंटेस्टाइन सब में बेसिक पीएच थोड़ा होता है यूरिन का पीएच ऑफ यूरिन Yes, ma'am. It is around 6 to 7.5. 6 to 7.5 राइट ओके तो सबको समझ आ गया किसी का कोई फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा हम हमेशा ना रेंज देते हैं ठीक है दो जब आपको एमसीक्यूज या फिर पेपर्स में आपको एक एवरेज का होगा बट आपको एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि इसके बीच में होना चाहिए फॉर एग्जांपल एवरेज हम टीयर्स की पीएच ऑफ टीयर्स इसका हम एक रेंज नहीं एक एवरेज लर्न करो जैसे स्टमक का वी नो ठीक है एसिडिक है 1 to 3.3 होता है बट टीयर्स सलाइवा ब्लड इन सब का जो एवरेज एक एग्जैक्ट पीएच है कोशिश करो कि वो याद रखना क्योंकि इन सब में ना आपको रेंजेस नहीं देंगे वो एक स्पेसिफिक दे देंगे इन चारों में से कौन सा है ठीक है तो कोशिश करना कि एक पर्टिकुलर पीएच ऑफ टीयर्स इन सब का रहे यूजुअली यस यू आर राइट कि हमेशा रेंज होती है क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफर करती है ठीक है एक पीएच था सेकंड वाज अबाउट कंट्रोल्ड वर्सेस सस्टेन एज इन की क्या डिफरेंस है दोनों ही डिलेड रिलीज टैबलेट्स करते हैं इफ यू गो बैक टू द स्लाइड सो इट वाज डिलेड रिलीज टैबलेट्स था जो प्रोलॉन्ग करते हैं रिलीज को मतलब कोई मुझे एक्शन है मेरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुझे उसको बहुत टाइम तक रखना है अपनी बॉडी में मुझे एकदम से उसका एक्शन नहीं चाहिए धीरे धीरे करके चाहिए दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिलेड रिलीज टैबलेट्स एंड उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड एंट्रिक इज मैंने बताया था लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे जाके रिलीज हो ठीक है वो चीज पे टारगेट करेगा तो हम एंट्रिक बोलते हैं वेयर सस्टेन कंट्रोल हमारी पूरी बॉडी के लिए हो सकता है तो क्या बेसिक डिफरेंस देखा आप लोगों ने इन दो चीजों में Can I try? Yes, your voice is breaking, my dear. Please tell me your name and proceed. But your voice is breaking. Hello? Vaibhavi Mule, am I? Hello? Yes, yes. Yes, when it comes to sustained release, we can say that the drug is being binded with the protein and it's inside the body. Like it's not just on the surface or it's like the sustained release drugs will undergo the first pass effect and maximum of them are protein binded. Whereas when it comes to the controlled release, we have the sublinguals and the implantation tablets, wherein we are using some excipients which help in the which helps the controlled release of the drug. Okay. What's your name? Vaibhavi Mule. Okay. That will be very nice try. First, let me correct you. देखो सस्टेन और कंट्रोल दोनों ही हमारे डिलेड रिलीज हैं ठीक है डिलेड मतलब आराम से रिलीज हो और दोनों में ही हम लोग ऐसे एक्सिपिएंट्स डालेंगे कि जो रिलीज को देर से करे एकदम से रिलीज ना करे यू एग्री विद दिस डू यू एग्री विद दिस कि सिर्फ कंट्रोल में नहीं हम एक्सिपिएंट सस्टेन में भी ऐसे डालेंगे जो कि प्रोलॉन्ग करे रिलीज को देर से करे राइट वैभवी राइट
I think your voice is breaking. Are you understanding this concept? एक चीज की delayed एक पूरा whole एक बड़ा सा टॉपिक है, उसके अंदर हमने सस्टेन कंट्रोल करा, तो एक्सिपिएंट्स तो दोनों में सेम ही डालेंगे. और रही बात सेकंड पॉइंट इज प्रोटीन बाइंडिंग. तो देखो क्या होता है, आपको पता है आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हर जगह डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है. कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में जाएगा, चाहे अब देखो सस्टेन और कंट्रोल को आप ऐसे कैटेगराइज ही कर सकते हैं, अच्छा ये से स्पेसिफिकली प्रोटीन से बाइंड करेगा. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई भी ड्रग हमारे आपने लिया वो तो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग होगी ही होगी, क्योंकि हमारी प्रोटीन हमारे बॉडी में सारी जगह में प्रेजेंट है. अब आप बोल रहे हो कि सस्टेन वाला सिर्फ करेगा बाइंड लेकिन कंट्रोल वाला नहीं करेगा, तो दैट इज कंप्लीटली अनफेयर, क्योंकि बॉडी में तो जा रहा है. तो अब आप इसको कैसे अलग कर सकते हो? कंट्रोल रिलीज वाली टैबलेट ना बाइंड करे प्रोटीन से. फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्जाम्पल दिया कंट्रोल का सबलिंगुअल, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है सबलिंगुअल टैबलेट्स का, बस सस्टेन भी आप बना सकते हो सबलिंगुअल को. सबलिंगुअल एक तरीका है जो टैबलेट्स हम सबलिंगुअली देते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल बताया सबलिंगुअल का आपका नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, ठीक है. तो अब क्या होता है नाइट्रोग्लिसरीन में, अब आपने बोला कंट्रोल, अब सपोज हमने उसको सबलिंगुअली दैट इज अंडर द टंग रखा, ठीक है. नाउ अब वो धीरे धीरे करके ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अब आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि वो प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा? जब आपके पूरे ब्लड में जा रहा है, आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, तो प्रोटीन से तो बाइंड करेगा ही करेगा. तो अब ये इसका डिफरेंस कैसे हुआ कि सस्टेन और कंट्रोल? यू गेटिंग माय पॉइंट वैभवी? Wherever you can type in the chat box because your voice is breaking. If you're not understanding, I can explain it. Does that make sense, guys? कि sustain और controlled में कोई एक तो पहले वो totality देखो कि दोनों ही delayed release है, दोनों ही prolong करेंगे release को. So what is the actual difference? Protein binding सबसे होगी क्योंकि body में absorption हो रही है उस चीज की. अब अगर बॉडी में पूरी जगह प्रोटीन है तो आप कैसे उसको बोल सकते हो कि आप प्रोटीन से बाइंड मत करो? आप एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बोल सकते हो, बट सारे प्रोटीन से तो मना नहीं कर सकते ना अपनी बॉडी को. तो फिर क्या रीजन है सस्टेन कंट्रोल? क्या बहुत ही बेसिक और बहुत ही आई थिंक लास्ट टाइम किसी ने, आई थिंक प्रणव था, शिवम था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट किसी ने बहुत ही क्लोज आ गया था उस आंसर के. कोई क्या है फिर उसका आंसर कि क्या सस्टेन एंड कंट्रोल में क्या है? या फिर हम इसको ऐसे ही यूज क्यों नहीं कर लेते कि सस्टेन कंट्रोल्ड हम सिनोनिम एक दूसरे के? कैन वी से दैट? या हम ये बोलते हैं मतलब कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, कभी भी यूज कर लो कंट्रोल्ड और कभी भी सस्टेन यूज कर लो. आई थिंक जिसने मेरी पहली क्लास ली थी, पहले क्लास ले चुके हैं आई थिंक, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम पे कोई था, तो उसको उन्होंने ये करा होगा, ये वाला मैंने सस्टेन कंट्रोल का बता रखा है. इफ एनीवन वांट्स टू ट्राई. Ma'am, Yes. sustain is, I feel that there is immediate release and to achieve a therapeutic value effect, and then after which the dose which is releasing, it is maintenance dose, and sustain follows first order kinetics and control. In case of control, ma'am, the dose which is releasing, it is like every time same amount of same concentration of drug dose is released, and control follows zero order kinetics. What's your name? Ma'am, Sunidhi. Sunidhi, absolutely right, Sunidhi. तो या एब्सोल्युटली राइट. सो बेसिकली अभी हम ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में नहीं जाते हैं क्योंकि ये फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे बाद में जाके, बट एक सिंपल सा अभी हम बहुत ही बेसिक चीज का डिफरेंस देखेंगे. Okay, Vaishali has written something. Ma'am, and control release same dose in uniform interval and in sustain different amount of dose. Absolutely right, Vaishali and Sunidhi. सस्टेन और कंट्रोल में अभी सिर्फ इतना डिफरेंस याद रखो कि सस्टेन में क्या होता है. फॉर एग्जांपल मैंने 500 mg की पीसीएम आपको दी, ठीक है. 500 mg ऑफ पीसीएम सबसे पहले सपोज आधे घंटे में उसने अपना असर दिखाना शुरू करा, तो वो सबसे पहले क्योंकि हमें पूरा ये प्रोलॉन्ग रिलीज है, मतलब बहुत टाइम तक रहेगी. फॉर एग्जांपल मैं 500 mg सस्टेन रिलीज पीसीएम आपको दे रही हूँ, आपने फर्स्ट डोज लिया आधे घंटे में, 500 mg में से फॉर एग्जांपल फर्स्ट पास इफेक्ट तो जाएगा क्योंकि आप ओरली दे रहे हो उसको, ठीक है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, तो उसके बाद भी वो सपोज बची 300 mg आपके पास एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी पूरी बॉडी में, वो 300 mg बची. 300 mg में सस्टेन रिलीज में क्या होगा, सबसे पहला बड़ा डोज आएगा,
मतलब वो बड़ा डोज मतलब 300 mg में से फॉर एग्जांपल से वो 150 mg सबसे पहले दे दी उसने फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में उसने थोड़ा से 120 mg रिलीज हो रही है, फिर धीरे धीरे करके 100, फिर 20, दैट इज कोई फिक्स्ड डोज नहीं रहेगा, मतलब कहते हैं ना कि कांस्टेंट कि 50 mg रिलीज हो रहा है पर आवर, नो। सबसे पहले वो बिग अमाउंट का मैक्सिमम डोज करेगा, उसके बाद जिस अभी वर्ड बोलता है मेंटेनेंस डोज जो प्रोलॉन्ग करेगा रिलीज को, तो बाद में धीरे धीरे करके छोटे छोटे अमाउंट में मेंटेनेंस डोज रिलीज होगा, वो भी जो फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज होगा, क्या पता 20 mg हो, क्या पता 50 mg हो, पर सबसे पहले एक मैक्सिमम फर्स्ट का जाएगा डोज, उसके बाद धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा और वो मेंटेनेंस डोज बोला जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सस्टेन्ड रिलीज। एम आई क्लियर विद सस्टेन्ड रिलीज? Yes, any doubt in sustain? Say yes or no. नहीं आया तो एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। Ma'am, can you repeat it in short, Sure. ma'am? श्योर। सस्टेन मतलब होता है, सस्टेन में जैसे मैंने बताया, आपने टैबलेट ली, सबसे पहला डोज रिलीज होगा जो आपका मेन मतलब कहते नहीं मैक्सिमम डोज जो थेरेपेटिक डोज रिलीज होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे अमाउंट में मतलब एक मेजर अमाउंट रिलीज हो गया। सपोज अगर हम ऐसी सिंपल उसमें देखें, हमें कोई मैकेनिक अंदर का मैकेनिकल पार्ट ना देखे, कुछ मैकेनिक्स ना देखें अगर, तो 500 mg में से सबसे पहले 300 mg रिलीज हो गया जो मेन डोज है, उसके बाद धीरे धीरे करके कभी 50 mg रिलीज हो रहा है, कभी 20 mg रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है, वो है मेंटेनेंस डोज। ठीक है, लेकिन सबसे इसमें दो चीजें सस्टेन में कि मैक्सिमम डोज रिलीज होगा तो धीरे धीरे करके कोई फिक्स अमाउंट का वो नहीं है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे कभी 20 हो रहा है, कभी 30 हो रहा है, वो सस्टेन करने के लिए आपके मैकेनिज्म को कि अगर फीवर कम करना है, मुझे 6 घंटे का लगातार मुझे फीवर कम करना है, तो फिर सबसे पहला डोज चले गया, उसने फीवर कम करा, अब अगले 1 घंटे में फिर से आ रहा है फीवर किसी को, तो वो सस्टेन आपकी बॉडी रिलीज कर दिया है ड्रग को, पर उससे कम जो मेन कंसंट्रेशन का ड्रग रिलीज हुआ था फर्स्ट टाइम में उससे कम होगा। ठीक है, उससे कम हो, क्योंकि वो मेंटेनेंस तभी, वो बाद के सारे डोजेस जो भी होंगे वो मेंटेनेंस डोज बोला जाता है, जिसका कोई फिक्स्ड रेट नहीं है कि कभी 20, कभी 30 mg, कभी 60 mg, एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, दैट इज सस्टेन। अब कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल वर्ड ही पता चल रहा है कि बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज होगा और ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर 500 mg कंट्रोल रिलीज दिया मैंने, तो वो फर्स्ट डोज भी 50 mg का होगा। सपोज पहला घंटा है मैंने खाया हुआ, 1 आवर में 50 mg रिलीज हुआ है, तो नेक्स्ट आवर 1 घंटे बाद भी 50 mg ही रिलीज होगा, उससे थर्ड आवर में भी 50 mg ही रिलीज होगा। कंट्रोल्ड एक स्ट्रेट उस पे रिलीज होगा, मतलब कोई ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी डोज की, कांस्टेंट डोज ही रिलीज होगा हर इंटरवल टाइम के साथ। अंडरस्टूड? Yeah, ma'am. So, Yes, ma'am, just a question like, if we are preparing a depot formation, what do we expect our medication to be, a controlled release or a sustained release? फॉर अ डिपो इंजेक्शन और एज इन कि आपको जब आपको बहुत सस्टेन रिलीज करवाना है? मैम डिपो लाइक अगर हम लोग वो लेते हैं ना अपन 3 months के अगर अपन वो लेते हैं लाइक दैट कैन कॉन्ट्रासेप्टिव 3 months के लिए बॉडी में इम्प्लांट इंसर्ट करते हैं जो 3 महीना चलता है, तो इज इट Are you talking कंट्रोल about depot injections or contraceptive? डिपो कॉन्ट्रासेप्टिव्स? Okay. So what's the question? तो आप कैसा चाहते हैं, इसको सस्टेन चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, ये बोल रहे हो आप? मैम एक्चुअली वही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम लोग उसको ये बोलेंगे कि वो सस्टेन रिलीज है, देन अकॉर्डिंगली अगर उसने पहले बार में एक जैसे आपने बताया कि मैक्सिमम डोज रिलीज कर दिया, तो will that not lead to a hormonal imbalance in the body, because these are absolutely right. So that's why there's a difference, sustain and control का। तभी मैं अभी इतना डीप नहीं गई हूँ इन दोनों के डिफरेंस में, तभी फर्स्ट और जीरो ऑर्डर जो किसी ने बोला था अभी डिफरेंस, वो ये चीज है कि अब अगर कोई मुझे बोलेगा कि व्हाट इज मोर प्रेफरेबल, अगर मेरे पास दोनों चीजें हैं कि मुझे सस्टेन भी करनी है, कंट्रोल भी करना, तो व्हाट इज प्रेफरेबल, तो प्रेफरेबल इज कंट्रोल रिलीज। रीजन बीइंग, जब हम ड्रग कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ये उसका है नहीं तो मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उस ग्राफ के थ्रू, बट सस्टेन रिलीज आप यू ऑल नो कि एक मैक्सिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, एक सेफ कंसंट्रेशन होती है ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। मतलब आपको ये चीज पता है कि कोई भी ड्रग है उसकी एक थेरेपेटिक एफिकेसी होती है, मतलब थेरेपेटिक कंसंट्रेशन होती है, उसके विद इन रहना होता है उसको। बट जब हम सस्टेन रिलीज की बात करते हैं, जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं,
तो क्या होता है वो जो हमारा थेरेपेटिक मैक्सिमम रेंज होती है ना थेरेपेटिक की, वो उससे ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि सबसे पहले ही उसने इतना सर्च दिखा देता है, वो इतना इंक्रीज दिखा देता है अपने डोज में कि उसके टॉक्सिसिटी के चांसेस, आई वुड से टॉक्सिक, क्योंकि आप थेरेपेटिक से ऊपर जब जाते हो तो टॉक्सिक होता है, जब आप थेरेपेटिक से नीचे जाते हो तो सब थेरेपेटिक लेवल होता है। सब थेरेपेटिक लेवल से ऊपर चले जाते हो तो टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इट इज प्रेफरेबल कि कंट्रोल रिलीज हो। पर आप सस्टेन कहाँ यूज कर सकते हो? सस्टेन मैक्सिमम तब यूज कर सकते हो जब आपको पता है कि अगर सपोज आपको कोई ऐसी सपोज फीवर हम लेते हैं, ठीक है, कि आपको पता है कि आपको अभी बहुत ज्यादा फीवर आ रखा है, 104 आ रखा है, आपको उसको कम करना है, तो सबसे पहले एक रिलीज वो हो जाए, मैक्सिमम रिलीज ले, ताकि अभी फीवर कम हो जाए, क्योंकि फीवर बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि जब 6-7 घंटे या 8 घंटे 12 घंटे भी मुझे फिर से नहीं चाहिए, तो आप वो थोड़ी थोड़ी डोज रिलीज करोगे, विच इज सस्टेन रिलीज। पहले आप उसको उस मामले में कंट्रोल करोगे जो अभी प्रेजेंट में है, विच इज 104 डिग्री फीवर। ठीक है, अब आपको 104 आपको फीवर है, अब 104 को आप कम करोगे सबसे पहले, तो आप सस्टेन रिलीज प्रेफर करोगे रादर देन कि कंट्रोल धीरे धीरे करके करेगा। अंडरस्टूड? मैम, या राइट। नाउ वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करी है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई, आई वोंट से किसी को टिपिकल एग्जांपल, बट सपोज अगर किसी को उस टाइम के लिए प्रिकॉशन लेना है, या उस टाइम के फेज के लिए कुछ हार्मोनल पिल्स पे करना है, कुछ जैसा भी है, जैसे भी सिचुएशन है, तो आप अगर उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, डिसऑर्डर है, डिजीज है, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, तो सबसे पहले आप उसको मैक्सिमम डोज उस मोमेंट पे प्रोवाइड करना चाहते हो। उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी पूरी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहे और वो सस्टेन तक रहे, तो दैट्स व्हाई सस्टेन भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल्ड होता है जब वो कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि सब कुछ स्टेबल रहे और ये रिलीज होता रहे। अंडरस्टूड? यस मैम। इसमें हम और डीप जाएंगे, डिफरेंस हम देखेंगे ड्रग कंसंट्रेशन का जब हम लेटर डिलेड रिलीज करेंगे। अभी जैसे सिंपल सा डिफरेंस ये याद रखना चाहिए कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन देन आराम से रिलीज, दैट इज सस्टेन। कंट्रोल रिलीज है वेयर एज स्टैग्नेंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग सेम कंसंट्रेशन का रिलीज होगा, जैसे भी है, चाहे वो पर आवर रिलीज हो, चाहे वो हाफ एन आवर में रिलीज हो, जैसा भी बनाया गया है, पर वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन रिलीज होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? या मैम। Okay. Okay, so these were the two questions. Okay, now the next thing is, सबने पढ़ा pre-read? यस मैम। Okay, so बता दो फिर क्या पढ़ा था। क्या समझ आया उस pre-read से? मैंने एक्सिपियंस का ही दिया था, ठीक है। So apart from Shivam, Pranav और वैशाली, ये सब, anyone wants to volunteer? Come on quickly. Hello, ma'am. Yes. Hello, Tell me ma'am. your name and then start. Hello, ma'am. Amir here. Hello. In excipient, first we have about diluents, Okay. which is also a filler used to bulk the amount of the drug, which to bulk the amount of drug which we use. Absolutely right. Basically, Yes. Okay. So don't give me example. Then diluent, the next thing you read about, other excipient is? then about we have done about binders, Mm-hmm. What are and those? then uh, these are the agents which we use to then bind the medicament. Bind the Medicament. medicament API. Okay, so basically the particles, the powder form जो हम bind करके करना चाहते हैं. ठीक है. Okay, next. Then Don't explain. The next volunteer or next person will tell. Okay, thank you. What's your name? Amir, ma'am. Amir. Okay, thank you, Amir. The next one. Quickly. Ma'am, can I? Yes, what's your name? Ma'am, Himanshu Thania. Okay. Go ahead. After binders. Yes, ma'am. We can divide the excipient into 3 groups: group 1, group 2, group 3. In group 1, there are diluents, binders, disintegrating agent, and flow promoters. As he said that the diluent and binder. Now, next is disintegrating agent. Disintegrants added to the tablet
to disintegrate or breaking the tablet when it contact in the water in the GIT. We can use starch, etc. We can add flow promoter. In the group 1, we increase the pharmacokinetic properties of the tablet. Oh, okay. In group You are 2, talking about flow promoters. yes, ma'am, flow promoters. I mean, group 2, we add sweetening agent, flavoring agent, and curling agent, Okay. which determine the organoleptic properties. And in group 3, we add polymers and waxes, which is used in coating. Okay, okay, right. Okay, perfect, Himanshu. Thank you. ओके सो एब्सोल्युटली राइट. सो हम एक्सिपियंस हमने पहले पढ़ लिया था कि हमें एक्सिपियंस क्यों चाहिए, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक्सिपियंस डालो अपने फॉर्मुलेशंस में, ठीक है. पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डालते ही हैं, मैन्युफैक्चरर्स डालते हैं, क्योंकि हमने ऐसे देखा कि कैटेगरी इतनी वाइड है. कभी कोटिंग के लिए जरूरी होता है, कभी पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए दैट इज कलर, फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल सकते हो, डाइल्यूएंट्स डाले जाते हैं, या फिर हम बाइंडर्स कभी कभार जरूरत पड़ जाती है क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर इंटरेक्शन इतना ज्यादा है नहीं, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, देन लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंस, ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट आउट विद एक्सिपिएंट्स. Okay, so the first one is diluents. Okay, so first we'll see diluents, या फिर अब इसमें कंफ्यूज होना, कभी diluents लिखा होता है, कभी fillers लिखा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली diluents का काम क्या होता है कि वो आपके ड्रग को जो ऐसे नहीं बोलूंगी स्पेस, बट क्या होता है, कई बार मैंने एग्जांपल दिया था एक डाइल्यूएंट्स के कि हमें डाइल्यूएंट्स कब जरूरी होती है, जब हमें उसको पूरा एक पूरी टैबलेट को ना स्पेस को फिल करना होता है. मतलब आपने बहुत बार देखी होगी, कभी बहुत छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं लाइक 25 mg की, पर जब आप उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे सपोज उसमें फॉर एग्जांपल आपको सपोज अब पीसीएम का ही लेते हैं, वैसे पीसीएम 25 mg की छोटी आती नहीं है, 500 mg की आती है, पर सपोज अगर 25 mg की सिट्राजीन देते हैं, सिट्राजीन, ठीक है, एंटी एलर्जिक. सिट्राजीन में अगर देखा हमने 25 mg लिखा है, तो कई बार उसको कंटेंट देखना चाहिए कि सच में सिट्राजीन पूरी 25 mg की है, या फिर उसमें लिखा है ओके इट इज 12.5 mg, एंड और सारी चीजें डाइल्यूएंट्स कभी डाल रखे हैं, चाहे सेलुलोज हो चाहे कुछ हो. तो क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू कंप्रेस, हम कंप्रेशन से अपने टैबलेट्स बना रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू कंप्रेस अ 12 mg पाउडर, ठीक है. पहली बात है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत आ सकती है, उसके ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ सकती है क्योंकि छोटी है वो, ठीक है. सो दैट्स व्हाई टू कवर इट अप, तो 12 mg मेरा मेन सिट्राजीन का जो एपीआई है वो डला हुआ है, और उसके अलावा ताकि वो थोड़ा सा बल्क में हो जाता है, कि फिलर्स उसमें डाले जाता है व्हिच इज कॉल्ड एज डाइल्यूएंट, ताकि टैबलेट का बल्क, मतलब टैबलेट का थोड़ा वेट बढ़ाया जाए, ताकि वो ट्रांसपोर्ट करने में, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, कंप्रेशन के टाइम, इन सब में इजी रहे, ठीक है. दैट इज व्हाट डाइल्यूएंट्स या फिलर्स बोले जाते हैं, ठीक है. नाउ इट आल्सो प्रोवाइड्स बेटर टैबलेट प्रॉपर्टीज सच एज इंप्रूव कोहेजन, परमिट यूज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग, और प्रमोट द फ्लो ऑफ पाउडर. नाउ व्हाट डज दिस मीन इज कि सिंपल कोहेजन, जो पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में इंटरैक्शन है, उसको भी प्रमोट करता है, ठीक है. पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है, प्री फॉर्मुलेशन में पढ़ता हमने कि पाउडर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हमें पाउडर कैसा चाहिए, जो भी हम एपीआई में रख रहे हैं या एक्सिपिएंट्स में रख रहे हैं. जब हमने वो स्टडी कर लिया, मैं कंप्रेशन के टाइम पे जाऊंगी, तो मुझे पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन जो है, मुझे वो अच्छी चाहिए. अगर वो अच्छी होगी तभी बेटर टैबलेट्स बन पाएंगी, ठीक है. तो अल्टीमेटली डाइल्यूएंट्स, और मोस्टली डाइल्यूएंट्स हर जगह डलते हैं, ठीक है, ताकि पूरा बल्क बना सके आपके टैबलेट का, और ताकि ड्रग जो आप यूज कर रहे हो बहुत एफिशिएंटली बन पाए. अंडरस्टूड. नाउ अब एक और चीज है कि जनरली क्या होता है, आपने सबने देखा है कि जनरली हम लोग राउंड टैबलेट्स, राउंड ओवल शेप की टैबलेट्स होती है जनरली क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड हमने रीजन भी इसका पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेशन के टाइम पे चिपिंग ना हो जाए, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या क्या इसके डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है. अब जैसे राउंड टैबलेट्स जनरली जो हम यूज करते हैं, जनरली उनकी रेंज रखी जाती है, जैसे हमने लैक्मिन में आई एम श्योर पढ़ा होगा सबने 3/16 to ½ इंच. ये याद कर लेना कि जनरली राउंड टैबलेट, जो हम राउंड टैबलेट्स की होती है, तो उनका एक क्या रखा जाती है, इनकी साइज रेंज, ठीक है. तो 3/16 to ½ इंच रखी जाती है. और ये इंचेस साइज कैसे डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करते हैं? वो जो डाई, जो कंप्रेशन की डाई होती है, जो हम कंप्रेस करते हैं, जो ऊपर से डाई आती है, जो कैविटी होती है, ठीक है, वो करती है. एनीवेज कमिंग बैक टू डाइल्यूएंट्स, तो जो डाइल्यूएंट्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. ऑब्वियसली हर चीज, जैसे हम ड्रग का भी चूज करेंगे, हम कोई भी चीज चूज करेंगे, हम देखेंगे कि मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं.
तो जो एक्सिपियंस हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, मतलब एक ब्रॉड टर्म में कि क्या क्या वही सारी प्रॉपर्टीज एक डाइल्यूएंट की होंगी, दैट इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, राइट, एंड इट शुड बी ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल एज इन FDA अप्रूव्ड होने चाहिए, दैट्स व्हाई इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड बी कमर्शियली अवेलेबल, दैट इज इट शुड बी चीप, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, एंड सिंस मुझे उसको बहुत ज्यादा बनाना है मुझे, तो इसलिए मुझे वो चीप होने जरूरी है, क्योंकि क्या मुझे नहीं पता मुझे कितना अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट लगेगा, अगर मुझे ज्यादा लगेगा तो इट शुड बी चीप, okay. Then it should be physiologically inert, obviously there should be no interaction with the API, जो भी मेरा ड्रग बनेगा पूरा उससे कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, it should be physiologically inert, right. Then it should be physically and chemically stable, कोई भी इंटरेक्शन केमिकली नहीं होनी चाहिए, फिजिकल एनवायरमेंटल वेरिएशन से कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया बाहर का, जैसे मैं टेम्परेचर बाहर रखा तो उसकी इंटरेक्शन बढ़ गई मेरे API से या फिर मेरे ड्रग से पूरा, ठीक है. तो इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली बी स्टेबल, इट शुड बी मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, फ्री फ्रॉम एनी अनएक्सेप्टेबल माइक्रोबायोलॉजिकल लोड, कुछ भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. तो तभी जब भी हम कोई नेचुरल, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब भी हम कोई नेचुरल डाइल्यूएंट यूज करते हैं ना, तो उसमें ये ड्रॉबैक हमेशा रहेगा, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज हम नेचुरली यूज करते हैं ना जो, तो उसमें हमेशा ये चीज रहेगी कि कुछ अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन रहेगा, क्योंकि या तो वो सपोज हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक चीज कि जब भी हम नेचुरल चीज यूज करते हैं उसमें कंटामिनेशन माइक्रोबियल लोड रहता ही रहता है कुछ अमाउंट का, दो हम ट्राई करते हैं कि वो इट शुड बी फ्री फ्रॉम इट, ठीक है. तो बहुत सारे हम उसमें ड्राइंग करेंगे अच्छे से, तो बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, बट अल्टीमेटली वो क्या है, कॉस्ट को बढ़ा देता है. बट यही है कि जो भी हम चीज नेचुरल यूज करते हैं उसमें माइक्रोबियल लोड रहता है थोड़ा. Then it should do not alter the bioavailability, वही चीज है, it should be physiologically inert, it should be color compatible, it should not produce any off color appearance, अलग से कोई कलर नहीं करना चाहिए. यूजुअली इट इज प्रेफरेबल कि आप डाइल्यूएंट्स वो सारे यूज करो जिनका जो कलरलेस हो. द बेस्ट थिंग इज टू यूज दैट. कलरिंग एजेंट डालने वो आप एंड स्टेज पे डाल देते हो जो FDA अप्रूव्ड कलरिंग एजेंट्स है, बट जो प्रेफरेबल कि जो आपके डाइल्यूएंट्स फिलर्स हैं जिनका मेन काम जो है मोटिव वो वही रहे, एंड इट शुड नॉट, ये नहीं कि मिक्स करके कुछ अलग ही कलर बन गया, ठीक है. देन दीज आर, और से कोई भी बायोअवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकली ना, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर थिंग्स कि डाइल्यूएंट कैसा होना चाहिए, व्हिच इज बट ऑब्वियस, राइट. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाइल्यूएंट्स, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज लैक्टोज. नाउ वी हैव टू व्हिच इज स्प्रे ड्राइड लैक्टोज एंड एनहाइड्रस लैक्टोज, राइट. एनहाइड्रस मतलब devoid of water. Absolutely right. Hydrous means water whenever there's a prefix n and means without water. Okay. So there is lactose, spray dried and anhydrous. Then we have directly compressible starch, Star-X 1500. Star-X 1500 is the trade name. और ये important है learn करना, क्योंकि question ऐसे आता है कि Star-X 1500 is a, तो चार options दे जाएंगे, diluent, your binder, disintegrant, coloring agent. तो Star-X is starch and also, या तो ये क्वेश्चन आएगा तो you know that it's a diluent. Okay. एक और चीज आ सकती है, Star-X 1500 is a lactose, hydrolyzed starch, microcrystalline cellulose, what? So it's a directly compressible starch, directly compressed rather that. So Star-X is a trade name. Okay. Then we have hydrolyzed starch. Hydrolyzed starch, we have MDES and Cellutab. Again, it's a trade name and it is very important to remember this. कि MDES and Cellutab we have two which are the hydrolyzable starch, and directly compressible में क्या है, Star-X 1500. Then we have MCC which is microcrystalline cellulose, which is Evisil pH 101 and pH 102. ये सब pH वो वाला pH नहीं है जो pH generally होता है minus log of H positive, वो नहीं है. This is trade names दिए गए हैं. तो ये दो टाइप के होते हैं, Evisil pH 101 and pH 102. I think pH 101 is for powders and pH 102 is जब आपको कैप्सूल्स बनाने होते हैं. आई एम नॉट श्योर दिस, बट ये दो टाइप के एविसिल्स होते हैं. एविसिल, अब देखो ट्रेड नेम आएगा, एविसिल लिख दिया, व्हाट इज इट, तो इट इज MCC व्हिच इज माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज, ठीक है. एम्कोसेल इज आल्सो, विवासेल इज आल्सो सेलुलोज. नाउ अब हाउ टू रिमेंबर दिस, पीछे सेल आ रहा है, सेल मींस सेलुलोज, ठीक है. नाउ पीछे जब सेल आ रहा है, आगे सेलू टैब आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं सेलुलोज लिख दो, इट इज अ हाइड्रोलाइजेबल स्टार्च, वेयर एज जब भी पीछे सफिक्स में सेल आ रहा है इट इज सेलुलोज.
then basic calcium phosphate, then we have mannitol and sorbitol, बहुत ही basic है, then sucrose, sugar tab, new tab, dipac, इन तीनों का difference बताऊंगी, which is very important, again very important. Then we have dextrose. तो सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ये सारी हैं बहुत बेसिक चीजें. नाउ इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि लैक्टोज का बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है. कोई बता सकता है? अगर आपने पढ़ा है, वो प्री रीड पढ़ा है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लैक्टोज Yes, का कौन है, नाम बताओ. मैम हिमांशु. मैम मिलार्ड रिएक्शन. एब्सोल्युटली राइट हिमांशु. सो बेसिकली लैक्टोज सबसे पहला डाइल्यूएंट था, ठीक है, और बहुत पॉपुलरली अभी भी यूज होता है. बट एक इसका चीज है कि ये जो एक एक्सिपिएंट है, बहुत सारे ड्रग्स है ये रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो हाइड्रस फॉर्म में हो, चाहे एनहाइड्रस, की मैंने बताया स्प्रे ड्राइड, मतलब बिल्कुल ही वाटर होगा पर उसे पूरा अच्छे से ड्राई कर दिया जाएगा, ठीक है. और एनहाइड्रस तो बिल्कुल 1% नहीं होगा. सो इन दोनों में चाहे से कोई भी फॉर्म हो लैक्टोज की, पर कुछ ड्रग्स के साथ ना ये मैच नहीं करता, कोई रिएक्शन शो नहीं करता. वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जैसे कोई भी क्योंकि इसमें मल्यार्ड रिएक्शन होता है. आई एम नॉट श्योर किसी लोगों ने पढ़ा है मल्यार्ड रिएक्शन. तो इसमें क्या करता है कि ये ना कलर चेंज हो जाता है जैसे ही आपका बेसिकली ना, वैसे इसमें बोला गया है जो जनरली अमाइंस ड्रग जो होते हैं ना, अमाइंस मतलब जो भी ड्रग्स में, जब हम आप लोगों ने मेड कैम्प पढ़ा होगा, जिसके भी स्ट्रक्चर्स में अमाइंस आता है ना, तो जनरली उनके साथ रिएक्ट कर जाता है ये लैक्टोज, ठीक है. एंड ये मल्यार्ड रिएक्शन को प्रमोट करता है. मल्यार्ड रिएक्शन में कुछ नहीं होता, इट लीड्स टू ब्राउनिंग या फिर डिस्कलरेशन हो जाता है. जो आपका ड्रग है ना वो ब्राउनिश हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा ब्राउनिश, क्योंकि जो लैक्टोज है और अमाइंस है वो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे आपस में, ठीक है. बट ये ऐसा बोला गया है, वैसे जनरली तो जो भी मैन्युफैक्चर होता है वो अवॉइड करता है लैक्टोज को अमाइन के साथ, बट जनरली ऐसा बोला गया है कि जो लैक्टोज का एनहाइड्रस वाला पार्ट है ना, मतलब एनहाइड्रस वाला कोई लोगो जिसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप उसको जो करोगे अमाइंस के साथ तो इट इज बेटर, मतलब वो इतना रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं करता. बट जनरली सारे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि लैक्टोज को हम अमाइन ड्रग्स के साथ ना दें, ठीक है. और ये चीज पता है इसलिए भी होती है, क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि एनहाइड्रस से ठीक है, आपने इसको एनहाइड्रस से कि भाई इसमें कोई भी वाटर नहीं है, बट जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा सराउंडिंग्स के टेम्परेचर वेरिएशन से, वाटर वो गैस करेगा, और वाटर उसने गैस कर लिया तो अगेन उसका वाटर कंटेंट आने लग गया, धीरे से एनहाइड्रस हाइड्रस में कन्वर्ट हो गया, और अल्टीमेटली वो अमाइन ड्रग के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा, मल्यार्ड रिएक्शन, दैट इज ब्राउनिंग, डिस्कलरेशन हो गया आपके ड्रग का, ठीक है. सो लैक्टोज में ऑलवेज रिमेंबर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बहुत मेजर ड्रॉबैक है मल्यार्ड रिएक्शन जो हमें लैक्टोज के साथ दिखता है. एनी डाउट? yes, any doubt in this diluent part except सुक्रोज के 3 ही बताऊंगी, बट अभी मल्यार्ड रिएक्शन सब क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज मैंने बताया, ये जो स्लाइड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं दूंगी, लर्न करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका ओरल वाइवा टाइप्स ले लेंगे, ठीक है. अब इस सुक्रोज को जो मैंने बताया था आपको, शुगर टैब, न्यू टैब, डाइपैक, ठीक है, ये तीनों शुगर के ही ट्रेड नेम, सुक्रोज के ही ट्रेड नेम्स हैं, और ये डिफरेंशिएट कैसे होते हैं. तो जो शुगर टैब होता है ना, इसमें 90 to 93% सुक्रोज होता है, प्लस 7 to 10% होता है इन्वर्ट शुगर. व्हाट इज इन्वर्ट शुगर? Yes, what is invert sugar? Ma'am, sucrose is called as invert sugar. Sucrose is called invert sugar. Yeah, ma'am. It basically it can change its optical characteristic from dextrose बेसिकली to सुक्रोज zero. से ही बनता है, बट वो पूरा मिक्सचर डेक्सट्रोज एग्जैक्टली, क्योंकि सुक्रोज अल्टीमेटली क्या क्लियर करता है, एज इन सुक्रोज जो होता है जब वो बाइफर्केट करता है तो वो क्या किस में कन्वर्ट होता है? Levo form. Glucose and fructose. As in it is composed of अच्छा, हाँ, one molecule of glucose glucose and fructose, right? मोनोसैकराइड्स क्या है सुक्रोज के? It is glucose and fructose, right? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. And दूसरी बात है सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है? Cane sugar. Okay. And Invert sugar. इन्वर्ट शुगर, इसको ना टेबल शुगर भी, अभी किसी ने टेबल शुगर बोला था?
ओके इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। एनीवेज ये पार्ट सारा कार्बोहाइड्रेट मतलब बायोकेमिस्ट्री का है। ये बहुत जो बेसिक चीजें हैं ना, वो जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे जैसा भी है तो उसको रिवाइज कर लेना कि बहुत बेसिक आती हैं चीजें। सुक्रोज का बाइफिकेशन से डाइसेक्राइड किस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। एनीवेज जो शुगर टैब है, शुगर टैब इज 93% ऑफ सुक्रोज प्लस 7 to 10% ऑफ इन्वर्ट शुगर। नाउ अब इन्वर्ट बेसिकली क्या होता है, एक सुक्रोज और इन्वर्ट शुगर में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। बता सकता है कोई? मैम व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज इट? वैसे सुक्रोज को ही इन्वर्ट शुगर कहते हैं, बट व्हाट इज, इसको हमने अलग अलग क्यों रखा है? सुक्रोज और इन्वर्ट शुगर को हमने अलग अलग क्यों किया है? Ma'am, inverse sugar is hydrolyzed product of sucrose. राइट, क्योंकि और इसमें बेसिकली एंजाइम्स को एक्ट करवाते हैं इन्वर्टेज को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। ठीक है, होता सुक्रोज ही है बट इसको हाइड्रोलाइज पार्ट एज इन इसमें ना इन्वर्टेज एंजाइम डालते हैं। ठीक है, तो वो उसको उसे थोड़े से केमिस्ट्री चेंज हो जाती है जिसकी वजह से उसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, फिर इन्वर्टेज एंजाइम एक्ट करवाते हैं। दैट्स वाई ये बोला है कि जो शुगर टैब, न्यू टैब एंड डाइपैक है, ये जो तीन चीजें हैं जो कि सुक्रोज से ही बने हुए हैं, बट इनके ट्रेड नेम्स हैं ये तीन। तो जो शुगर टैब है उसमें 90 to 93% सुक्रोज होगा प्लस 7 to 10% इन्वर्ट शुगर होता है। न्यू टैब में 95% सुक्रोज है एंड 4% इन्वर्ट शुगर एंड रेस्ट 1% जो अदर शुगर्स डाल दिए जाते हैं, हनी वगैरह। देन डाइपैक में इज 97% ऑफ सुक्रोज प्लस 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रोज। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है एंड जो क्लासिफिकेशन है डाइपैक में, डाइपैक से डी आ रहा है, डी फॉर डेक्सट्रोज डलेगा उसमें। ठीक है, डाइपैक में डेक्सट्रोज डलेगा, सुक्रोज तो देखो हर उसमें डलेगा। लेट मी यूज द कर्सर। शुगर टैब, सुक्रोज हर जगह, न्यू टैब, डाइपैक एंड शुगर टैब सभी में डलेगा सुक्रोज। डाइपैक में याद रखना डी से डेक्सट्रोज डलेगा इसमें। ठीक है, एंड न्यू टैब में 95% सुक्रोज यूज हो रहा है एंड 4% इन्वर्ट शुगर, दैट इज 95%। शुगर टैब में 90 to 93%, डाइपैक में 97%। तो ये सारी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं और ये किससे बनते हैं ये आता है। ठीक है, ट्रेड नेम्स क्या हैं। सो अंडरस्टूड? Any doubt in diluents? Yes? नो मैम। Okay. Now, okay, एक और चीज, अब सबने जैसे ये पढ़ा था, क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट्स, या तो सबने डाइल्यूएंट्स पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ये बताओ कुछ एक्स्ट्रा चीज आपने पढ़ी हो जो इस स्लाइड में नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे मेन चीजें डालूंगी तभी प्री रीड दिया जाता है कि आप लोग पढ़ो उसको। एनीवेज, जिसने नहीं भी पढ़ा है इस क्लास के बाद जाके, से मैंने डाइल्यूएंट्स जितना पढ़ाया आपको, उसके बाद क्लास के बाद जाना, जब आप नोट्स बनाते हो और उस लैकमेन से पढ़ना तो क्या चीज रह गई, क्या चीज एडिशनल है जो ऐड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी अंडरलाइन करके भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज आप एक बार देखना और फिर मेरे पास आना अगर आपको कोई डाउट हो। ठीक है, अब देखो, अब बहुत ही बेसिक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, ये सारी चीजें जो है कहाँ सबसे ज्यादा यूज होगी, जहां मुझे उसको बल्कि प्रोडक्ट भी बनाना है एज वेल एज मुझे उसको थोड़ा शुगरी, मतलब बहुत ही कड़वा है कोई ड्रग अगर एपीआई, तो मुझे अगर उसको थोड़ा सा स्वीटनिंग एजेंट की तरह भी करना है, तो ये एज अ स्वीटनिंग एजेंट भी यूज हो रहा है, एज अ डाइल्यूएंट भी यूज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सपोज मैनिटॉल इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट और you say as a sweetening agents, both, none of the above. So the answer is both, क्योंकि मैनिटॉल एज अ डाइल्यूएंट भी यूज हो रहा है एज वेल एज अ स्वीटनर भी यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स। ठीक है, तो बाइंडर्स एंड वर्ड ही पता चल रहा है इससे कि बाइंड करना है हमें, तो बेसिकली बाइंड कब करना होता है, जब हमें एक पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कॉम्पैक्ट्स बनाने हैं, टैबलेट जैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है तो मुझे उसके कॉम्पैक्ट्स बनाने हैं। सो इट इज एडेड इधर इन ड्राई और वेट फॉर्म टू फॉर्म ग्रैनुल्स टू फॉर्म कॉम्पैक्ट्स फॉर डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट्स। ठीक है, अब हमने कॉमनली यूज बाइंडर्स अकेशिया एंड ट्रागागैंथ। नाउ अब मैं आपसे पूछती हूँ ये चीज, अकेशिया एंड ट्रागागैंथ का क्या ड्रॉबैक हो सकता है?
Microbial contamination. एब्सोल्युटली राइट, जिसने अगर ये बोला कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, क्योंकि नेचुरली ऑब्टेन्ड है एंड गमी मास होता है, ठीक है, और इसमें तो निकालना भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रिमूव करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। यूजुअली और ये कंसंट्रेशन लिखी हुई याद रखना 10 to 25% की रेंज में ये यूज होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन याद नहीं भी रह रही ठीक है, बट ट्राई टू डू, क्योंकि सबकी बाइंडर से 10 to 25% के बीच में ही रहती है, ठीक है। तो अकेशिया एंड ट्राइगन हमें पता है गमी मास है, तो सबसे बेस्ट बाइंडर यूज होता है, ओके। नाउ अब है हमारे पास नेक्स्ट इज मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। HPMC, HPC इज हाइड्रोक्सी, अगर किसी को लिखना है फुल फॉर्म यू कैन राइट इट डाउन, इट इज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। तो सेलुलोज की जो टाइप है वो यूज होते हैं। जेलेटिन, जेलेटिन एक बहुत ही नेचुरल प्रोटीन है, ठीक है, 10 to 20% कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है। जेलेटिन हमारे पूरे फार्मेसी में, मतलब बेसिकली हम स्पेसिफिकली बात करें अगर फार्मास्यूटिकल्स की, तो जेलेटिन और कहाँ यूज होता है? एज अ टैबलेट बाइंडर यूज होता है, और कहाँ यूज होता है? कैप्सूल। मैम कैप्सूल्स में। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, कैप्सूल्स में यूज होता है बनाने के लिए। नाउ ओके, नाउ आल्सो हमें पता है, आई डोंट नो क्योंकि अब तो सिर्फ कोविड हो रखा है, तो ये जेलेटिन के जो पेस्ट जैसे गम अकेशिया के भी आई एम श्योर टर्गन आपने बना मिक्स करा होगा मॉर्टल एंड पेस्टल में, फिर बोलते हैं जब एक क्लिकिंग साउंड आता है, वो करे एक्सपेरिमेंट, यस मैम। है ना। तो वो जेलेटिन वैसे ना अकेशियन ट्राइगन से ज्यादा, क्योंकि ट्राइगन एंड अकेशिया ना बहुत बहुत ज्यादा गमी ग्लूई होते हैं, जेलेटिन वेरस बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। देन वी हैव ग्लूकोज 50% कंसंट्रेशन। PVP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVP? Polyvinyl pyrimidine. पॉलीविनाइल पायरोलोडीन, पॉलीविनाइल पायरोलोडीन 2% यूज, यस, Yeah, ma'am, it's PVP. Yeah. पॉलीविनाइल पायरोलोडीन है, ठीक है। फुल फॉर्म याद कर लो या लिख लो कहीं जो मैं बोल रही हूँ, पॉलीविनाइल पायरोलोडीन 2% कॉन्सेंट्रेशन इसकी यूज होती है, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च हमने पहले उसमें भी पढ़ा है एज अ डाइल्यूएंट। स्टार्च पे सबसे ज्यादा ये भी यूज होता है, वाटर में डिस्पर्स कर दो इसको 10 to 20% कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रॉपर्ली अच्छा सा पेस्ट बन जाता है ये। फिर ग्लूकोज हो गया आपका। देन वी हैव सोडियम एल्जिनेट, ठीक है, सोडियम एल्जिनेट भी यूज होता है। देन वी हैव सॉर्बिटॉल भी यूज होता है। एल्जिनेट, मिथाइल सेलुलोज, ये सारे बहुत ही कॉमनली बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स हैं, ठीक है। नाउ अब एक और चीज है, जैसे हमने अभी ये सेलुलोज की बात कर रही थी ना, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी, एक होता है जैसे सबको पता है मिथाइल है, वैसे इथाइल सेलुलोज भी यूज होता है। और इथाइल सेलुलोज जो होता है स्पेसिफिकली यूज होता है जब भी मुझे मिक्स करना हो अल्कोहलिक कोई सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब भी आप इसको कोई भी वाटर के साथ यूज कर लोगे इथाइल सेलुलोज को स्पेसिफिकली, इफ यू गो इन लैक्मेनस में लिखा हुआ होगा, तो जब भी आप इथाइल सेलुलोज को अल्कोहलिक सोल्यूशन से ही प्रेफरेबल होता है। अगर आप उसे नॉर्मल किसी उसमें यूज करोगे ना, तो वो ना डिसइंटीग्रेशन, जो अल्टीमेटली गोल क्या है बॉडी में जाके, तो बाइंडर्स मुझे ऐसे नहीं चेंज, कंसंट्रेशन 10 to 20% ही वेरी करवाई जाती है। ग्लूकोज 50% है क्योंकि इसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी थोड़ी कम है, तो मुझे बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन हमें ज्यादा लेनी पड़ती है। पर हमें बाइंडर्स, हमें ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा कि हमें बाइंडर्स मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के लिए सही है, बट मुझे बॉडी में जाके अल्टीमेटली मेरा गोल है कि उसे डिसइंटीग्रेट करना है, वो ऐसे ऐसी बाइंड होके नहीं रहनी चाहिए, उसे डिसइंटीग्रेट करना है बॉडी में जाके, राइट। इट शुड नॉट रिटार्ड, इट शुड नॉट ब्लॉक द डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। So this was your binders and adhesives. Now dried gummy exudation obtained from stem of Astragalus gummifer label. This is Acacia and Tragacanth. ठीक है, ये सारा अगर आप अभी ऐसे लर्न करना है ऐसे कर लो, वरना आपको कॉग्नोसी में लर्न करना पड़ेगा। तो इसका क्या बायोलॉजिकली कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है ये, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव डिसइंटीग्रेंट, ठीक है, बहुत जो अल्टीमेट गोल है हमारे, कि हमारा ये सारी चीजें हम अभी तो डिसइंटीग्रेंट से पहले हम बाहर की चीजें कर रहे थे कि कॉम्पैक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत ना आए। अब है डिसइंटीग्रेंट जो हमारी बॉडी में जाके प्रॉपर्ली ब्रेक हो रहा है, प्रॉपर्ली डिसइंटीग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आई थिंक हिमांशु ने एक्सप्लेन करा डिसइंटीग्रेंट को कि एब्सोल्युटली सही करा कि जैसे वाटर हमारे जो जीआईटी में जितना वाटर है, जो भी सोल्यूशन है उसमें जाके, लिक्विड में जाके जैसे ही वो टच हुआ मेरा जो टैबलेट है, वो इमीडिएटली शुड स्टार्ट
breaking up or it should start disintegrating, right? तो सारे जो हम डिसइंटीग्रेंट भी वही डालते हैं कि ऐसे डालते हैं कि जो मैक्सिमम वाटर को भी एब्जॉर्ब बाहर से अंदर लाए, एज इन जो भी हमारे बॉडी में है वाटर सबसे ज्यादा टैबलेट की तरफ लाए, ताकि टैबलेट स्वेल हो जाए, एंड स्वेल होकर अल्टीमेटली क्या हो, बर्स्ट आउट हो जाए, जो भी उसका एपीआई है, जो उसका मेन मैकेनिज्म है वो करना शुरू कर दे, ठीक है? तो उसमें भी सबसे ज्यादा स्टार्च, अब यू कैन सी स्टार्च हमने एज अ डाइल्यूएंट भी पढ़ा, एज अ डिसइंटीग्रेंट भी पढ़ा, और एज अ बाइंडर भी पढ़ा, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्मुलेट हो सकता है कि स्टार्च इज यूज्ड एज अ, अब आपको 3-4 ऑप्शंस दिए ना, अब यू हैव टू सिलेक्ट अमंग योरसेल्फ। तो दैट्स व्हाई जो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि डाइल्यूएंट है तो डाइल्यूएंट की तरह ही काम कर रहा है, डाइल्यूएंट कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है एज अ डिसइंटीग्रेंट, एज अ डाइल्यूएंट, एज अ बाइंडर, बट एक जो है वो 2-3 की प्रॉपर्टीज भी निभा सकता है, ठीक है? तो स्टार्च सबसे ज्यादा यूज होता है 5 to 20% ऑफ द टैबलेट वेट टैबलेट का जितना वेट है उससे 5 to 20% आप डाल सकते हो। देन स्टार्च डेरिवेटिव्स, प्रिमोजेल, एक्सफ्लोटैब। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अब अगर आपको ये ट्रेड नेम्स है, ट्रेड नेम्स किसके हैं? स्टार्च के, पर डिसइंटीग्रेंट के। अब अगर आपको प्रिमोजेल लिख दिया और फिर लिखा प्रिमोजेल इज यूज्ड एज अ 1 सेकेंड, ठीक है? तो यस, तो आई वाज सेइंग कि अगर सपोज आपको क्वेश्चन में आया प्रिमोजेल या एक्सफ्लोटैब, अब उसके अंदर लिखा है कि इट इज यूज्ड एज अ डिसइंटीग्रेंट और डाइल्यूएंट एंड बाइंडर। नाउ अब ये मतलब नहीं है कि स्टार्च है, प्रिमोजेल तो स्टार्च डेरिवेटिव है, तो इसलिए मैं तीनों को क्लिक कर दूं एज एन ऑल ऑफ द अबव, नो। अगर प्रिमोजेल स्पेसिफिकली ट्रेड नेम है स्टार्च एज अ डिसइंटीग्रेंट का। यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एमसीसी, या फॉर एग्जांपल एमसीसी इज माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज, या फिर एविसिल। एविसिल मैं ये नहीं लिख सकती सेलुलोज है तो भाई सेलुलोज तो बाइंडर भी यूज हुआ है, बट नो, एविसिल इज अ एमसीसी, दैट इज माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज, और वो किसके अंदर आता है? एज अ डाइल्यूएंट। अंडरस्टूड? So this is a starch derivative, Primogeil and Exflotab, जो 1 to 8% concentration के लिए यूज होता है। तो बेसिकली अगर आप बोलोगे प्रिमोजेल और एक्सफ्लोटैब का क्या है मतलब, इसके अंदर जो ट्रेड नेम्स हैं, ठीक है, मॉडिफाइड स्टार्चेस होते हैं, बट ये एक्चुअली क्या होता है? CMS, विच इज कार्बोक्सिल मिथाइल स्टार्चेस होते हैं ये, ठीक है? स्टार्चेस है बट इसमें कार्बोक्सिल और मिथाइल की ग्रुपिंग हो जाती है, तो कार्बोक्सिल मिथाइल स्टार्चेस होते हैं, एंड 1 to 8% ऑफ कंसंट्रेशन में यूज होते हैं, ठीक है? सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट्स, अगर एक और नाम लिया जाए, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट्स भी होते हैं। एनी डाउट इन दिस up to this? Yes? नो मैम। ओके नेक्स्ट, क्लेज यूज होते हैं, क्लेज में वीगम। अब वीगम बेंटोनाइट, वीगम का फुल फॉर्म है मैग्नीशियम एल्यूमिनाई सिलिकेट, ठीक है? और मैंने इसको अपने टाइम पे तो ऐसे याद करा था, ऐसे वीगम है तो गम जो होता है बहुत ज्यादा मास होता है उसका, मतलब वेट थोड़ा ज्यादा होता है, तो मास से है M फॉर मैग्नीशियम, MAS, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो वीगम जब भी आता था क्लिक होता तो मुझे आता था कि गम पीछे आ रहा है, गम मतलब मास, मतलब बहुत ज्यादा हैवी होते हैं ना गमी चीज जो होती है, तो मास से M फॉर मैग्नीशियम, MAS मास, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है? वीगम है जो यूज होता है। देन बेंटोनाइन 10% यूज होता है, दैट टू कलर टैबलेट्स में प्रेफरेबली डाला जाता है ये सिर्फ, ठीक है? These are clays. Now, अब है cellulose, फिर again cellulose derivatives. This is also very commonly asked question. Cellulose में AC diazole, ठीक है? So it is sodium CMC, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है ये, क्रॉस लिंक्ड होता है इसमें, सोडियम CMC होता है ना सेलुलोज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, उसमें सोडियम जो होता है क्रॉस लिंक्ड होता है, और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, AC diazole, ठीक है? बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में ये यूज होता है, ठीक है? फिर उसके बाद अच्छा एक और चीज है, एक AC डायसोल, जो कि आपने नए नए ट्रेड नेम्स पढ़ रहे हो ना, आपके लिए अभी बहुत नए हैं, मतलब बार बार इस चीज को पढ़ते रहोगे, एक नोट बना दो जहाँ पे भी पढ़ते हो आप, एक स्लिप में या फिर एक रजिस्टर में, एक पेज में लिख दो, बार बार पढ़ते रहोगे ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, ओके AC डायसोल इज डिसइंटीग्रेंट, डाई इसमें याद रखना कि डिसइंटीग्रेंट का काम कर रहा है, तो जब भी AC डायसोल आए DI आ रहा है मतलब डिसइंटीग्रेंट है, अंडरस्टूड?
जब भी डाई आए बीच में मतलब डिसइंटीग्रेंट है। अब एसी डाइसॉल एंड एविसिल में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एविसिल क्या है? डाइल्यूएंट है। एसी डाइसॉल क्या है? डिसइंटीग्रेंट है। ठीक है। देन एल्जिनेट जो बाइंडर भी यूज हुआ था वो यहाँ पे भी यूज होता है। देन पीवीपी, अगेन पीवीपी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल पाइरोलिडीज। एब्सोल्युटली राइट। बाइंड इसी यहाँ पे कंसंट्रेशन डिसइंटीग्रेंट में अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट पीछे हमने कौन सी कितनी कंसंट्रेशन पढ़ी थी इसकी? 2%। एब्सोल्युटली 2% कर दी। जब 2-3 बार पढ़ोगे ना इसको, अभी बहुत ज्यादा न्यू लगेगा, धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। ठीक है। Then next we have your one second. Yeah. So एक थे हमारे डिसइंटीग्रेंट्स, ठीक है। अब होते हैं सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल जिनका एक तो नॉर्मल फिनोमिना जो डिसइंटीग्रेट का है वो हो नहीं पाता। तो हमें कई बार कुछ ड्रग्स के साथ ना बहुत ज्यादा ताकि डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी उनकी बढ़ जाए, ठीक है, ताकि इट स्वेल्स अप टू 10 फोल्ड विद इन 30 सेकंड्स व्हेन कांटेक्ट टू वाटर। हमें उसे डिसइंटीग्रेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाना है बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग? डिसइंटीग्रेंट ऐसे डालते हैं जो ये 3 टाइप की सबसे कॉमनली यूज होते हैं। एक है क्रॉस कार्मेलोज विच इज क्रॉस लिंक सेलुलोज, ठीक है। तो जितना क्रॉस लिंकिंग कर दोगे ना तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बाइंड करते हैं और बहुत ज्यादा स्वेलिंग जल्दी। जितने ज्यादा क्रॉस लिंक, आप ध्यान से देखोगे इसमें हर जगह क्रॉस क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग कर दी जाती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो क्रॉस लिंकिंग से क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना वो आके एंट्रैप होते रहते हैं। तो जितने ज्यादा, और हमारा मेन काम तो यही है डिसइंटीग्रेंट का कि वाटर मॉलिक्यूल्स आए, एब्जॉर्प्शन हो एंड स्वेलिंग हो एंड अल्टीमेटली मेरा ड्रग रिलीज हो, ठीक है। तो क्रॉस कार्मेलोज इज क्रॉस लिंक सेलुलोज, क्रॉस पोविडीन इज क्रॉस लिंक पोविडीन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलाइड इज क्रॉस लिंक्ड स्टार्च, ठीक है। तो ये 3 है जो यूज होते हैं एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट। एंड इट इज एडेड बिफोर कंप्रेशन एंड बिफोर ग्रैनुलेशन। ये सब प्रोसेसेस हैं जो मैं बाद में एक्सप्लेन कराऊंगी कब कौन सा डलता है। ये सारे प्रोसेसेस जब मैन्युफैक्चरिंग के तब हम पढ़ेंगे। Then we have lubricants and glidants. Lubricants prevent adhesion of tablets to the dye surfaces and punches. जो वर्ड ही पता चल रहा है, आपने पढ़ा होगा लुब्रिकेट, किसी चीज को लुब्रिकेट करना, किसी चीज को, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं अपने डोर्स के एंगल्स में, कॉर्नर्स में हम लोग करते हैं। अभी साइकिल कभी आप बचपन में यूज करते होगे तो हम उसे लुब्रिकेट करें ताकि की फ्लो सही रहे, ताकि मूवमेंट सही रहे पेडल्स की। तो लुब्रिकेंट प्रिवेंट करता है अडेशन ऑफ टैबलेट्स टू द डाई सरफेसेस एंड पंचेस। मतलब कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जब हम डाई सरफेसेस की बात करेंगे, जब हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो टैबलेट का जो पाउडर है वो मेरे डाई की या कैविटी या फिर जो भी जिससे मैं पंच कर रही हूँ उनसे चिपके ना। क्योंकि अगर मेरा ड्रग या मेरे पाउडर उससे चिपक गया तो मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे बनानी है तो वो तो कम होती रहेगी। थोड़ा अमाउंट परमिसेबल है कि इधर उधर गिर गया या फिर इधर उधर चिपक गया, बट दैट्स हम लुब्रिकेंट्स डालते हैं। लुब्रिकेंट्स समझ लो ऑयलिंग करते हैं हम चीजों की, चाहे हम डाई सरफेसेस की ऑयलिंग करेंगे, पंचेस की करेंगे, ताकि जो टैबलेट्स का जो पाउडर है ना मेरा, जो मैं कॉम्पैक्ट करने जा रही हूँ वो उनसे ना चिपके, रादर देन वो मेरे जो इंटैक्ट कॉम्पैक्ट जो मेरा टैबलेट बन रहा है उसमें एज इट इज रहे। तभी हम बाइंडर्स डालते हैं। बाइंडर्स इसलिए डालते हैं ताकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन रहे। लुब्रिकेंट्स डालते थोड़ा, कहते नहीं ऑयलिंग कर दी है सरफेसेस की, ताकि प्रॉपर्ली एक कॉम्पैक्ट आपको पाउडर मिल जाए। Glidants are intended to promote the flow of granules and powder by reducing the friction between the particles. Now एक चीज ध्यान रखना, lubricants, glidants ये सब हम synonymously यूज कर लेते हैं, बट दोनों में थोड़ा बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। अब अगर आपने लैटिन में पढ़ा होगा तो बताओ क्या डिफरेंस है? Tell me. Ma'am, may I? Yes, please be a bit loud. Yeah, ma'am. Ma'am, so the basic difference which I studied, like lubricants, basically they tend This to is Shivam, avoid the. right? Yeah, ma'am. Can They you please tend be a to bit avoid. loud? I can't hear Yeah, you. ma'am. Yeah, Ma'am, can you hear me now? yeah. मैम सो जो lubricants होते हैं दे बेसिकली ट्राई टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ द पाउडर मास with the machine or the die cavity, and glidants actually increase the flowability property of the powder mass inside the die cavity. Yes. So yes, absolutely right. So basically क्या है कि lubricants जो होते हैं ना वो हम डाई सर्फेसेस या पंचेस में
अप्लाई कहते हैं, एक लेयर लगा दी है, एक ऑयलिंग कर दी है, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑयल, क्योंकि अगर ऑयल भी करोगे तो ज्यादा फ्लो भी नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा कि वो कॉम्पैक्ट ही ना बन पाए। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये जब हम टैबलेट को इजेक्ट करवाते हैं उस डाई कैविटी से, तो उसमें ना चिपके, ये टैबलेट प्रॉपर्ली फॉर्म हो, उस चीज के लिए है, ठीक है। वेयर जब हम अडेरेंस, एक लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट और अडेरेंस है, तो जो एंटी अडेरेंट होता है उसका भी यही पर्पस होता है कि स्टिकिंग या फिर पाउडर पंचेस वगैरह इन सब में ना चिपक जाए ना। एक चीज बताती हूँ, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स वो डाई सरफेसेस के स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, डाई कैविटीज के लिए। वेयर एज देखो एक चीज याद रखना, सब चीजें आपस में फंक्शंस इसके वन ऑफ द सेम थिंग है कि अल्टीमेटली पंचेस में ना लगे, यहाँ लगे। पर अगर आपको बहुत स्पेसिफिक जाना है तो ना, एक होता है हमारे पास पंचेस, पंचेस मतलब जो ऊपर से पंच होता है, और एक होता है डाई। डाई कैविटी क्या होती है, जहां पे आप अपने पाउडर रखा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज डाई कैविटी? कैविटी वो चीज है जो नीचे बेस में है, जहां पे अपना पाउडर रखा है, और पंच है जो ऊपर से पंच आ रहा है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट्स अगर आपको बहुत ही माइन्यूट डिफरेंशिएट करना है, तो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं ताकि डाई कैविटीज में अप्लाई करते हैं, ठीक है। पंचेस में हम एंटी अडेरेंट करते हैं ताकि स्टिक ना हो, ताकि जब पंच ऊपर आए ना तो उसमें वो स्टिक ना हो पाउडर आपका। बल्कि वन ऑफ द सेम थिंग है कि लुब्रिकेंट या एंटी अडेरेंट, बट अगर बहुत स्पेसिफिक जाना है आपको, तो जो डाई सरफेसेस है नीचे बेस में वो हम लुब्रिकेंट्स लगा लेते हैं, पंचेस में हम लोग लगाते हैं एंटी अडेरेंट। वेयरएज ग्लाइडेंस जनरली एक पाउडरी मटेरियल है, फ्लो बढ़ाने का टैबलेट्स का, उनमें यूज होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में फ्लो रहे उनके लिए यूज होता है। अंडरस्टूड? डज दैट मेक सेंस? यस, टू मच ऑफ साइलेंस। या मैम। ठीक है, तो वैसे वन ऑफ द सेम थिंग है सारी चीजें, बट अगर बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं लुब्रिक, क्योंकि हम ना कुछ लुब्रिकेंट्स, जैसे आपको बोलेगा लुब्रिकेंट्स कौन से यूज होते हैं, तो जैसे अपने पास स्टेरिक एसिड, मैग्नीशियम स्टीरिएट, टैल्क, वेरी कॉमन, पेग, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 4000 6000, इसको मैक्रोगॉल्स और कार्बोवैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगेन इसका ट्रेड नेम है ये, कि मैक्रोगॉल्स या फिर कार्बोवैक्स किस लिए यूज होता है, तो इट्स यूज एज अ लुब्रिकेंट। सर्फैक्टेंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम स्टीरिएट, ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज आपके लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है। Then we have glidance. Glidance मतलब cornstarch 5 to 10%, talc 5%, cabosyl again very important, cabosyl, celluloid ये सब, और aerosyl 0.23 to 3%, very important। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब कंफ्यूजन होगी आपको तीन चीजों में, which is एविसिल, एरोसिल एंड एसी डाइसॉल, ठीक है। एसी डाइसॉल तो मैंने क्लियर कर दिया, डाई बीच में आ रहा है मतलब डिसइंटीग्रेंट है। एविसिल सेलुलोज फर्स्ट डाइल्यूएंट में कर लिया आपने। एरोसिल, अब एविसिल, एविसेल है वो, सेलुलोज है तो वो वहां पे यूज हो रहा है, सेलुलोज यहाँ पे कहीं यूज नहीं हो रहा है एज अ ग्लाइडेंट। एरोसिल यहाँ पे यूज हो रहा है। सिल से याद रखो स्लिप, अगर याद कर सकते हो, सिल से स्लिप, स्लिप मतलब हमें ग्लाइडेंस या लुब्रिकेंट इन सब में यूज करना है, तो एरोसिल जो स्लिप करता है, स्लिप कराने में हेल्प करता है, तो 0.23 to 3% यूज होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में। देन वी हैव कैबोसिल, अगेन स्लिप कराने में हेल्प करता है। फिर कुछ साइलॉइड्स वगैरह टाइप के मटेरियल्स भी होते हैं। जब लैक्मेन में जाओगे अंडरलाइन पार्ट भी देखना, और देखना क्या क्या, मैक्सिमम ट्रेड नेम्स कोशिश करो याद करने की, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। So these were lubricants and guidance. Now, अब इसका आंसर बताओ, कुछ some MCQs. MCC is also called as you can either write it in chat box or unmute your mic. Vaishali said two. That's second. Evisil. Absolutely right. MCC is microcrystalline cellulose. It is absolutely right. 1 second. Next. What is Primogel? पहले मुझे बताओ प्रिमोजेल क्या है, बिना देखे कुछ वैसे ही बोल दो, एज अ डाइल्यूएंट है, डिसइंटीग्रेंट है, क्या है?
यस, बहुत शांति है। देखो जब भी कुछ ऐसा है ना कि अच्छा ये तो हमने पढ़ा नहीं, तो सबसे पहले जाया करो कि प्रिमोजेल है क्या। तो वो डाइल्यूएंट में नहीं है, बाइंडर्स है क्या, वो प्रिमोजेल था क्या? इट्स नॉट अ बाइंडर, इट्स अ डिसइंटीग्रेंट। प्रिमोजेल, एक्सफ्लोटैब जो हमने पढ़े थे, ठीक है। 1 second, लेट मी सी। 1 second। ओके, या सो तो इसका आंसर देखो, प्रिमोजेल हमारा क्या है, डिसइंटीग्रेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड HPMC फॉर डायरेक्ट कंबशन, नो। हमने प्रिमोजेल एक्सप्लोटैब में क्या पढ़ा था कि ये स्टार्चेस होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट तो ऑप्शन है ही नहीं। सेकंड, मॉडिफाइड MCC फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, तो ये सेलुलोज नहीं है, स्टार्च है, तो सेलुलोज तो दोनों चीजें तो गई। फिर हाइड्रोजेलिंग पॉलीमर फॉर जेल फॉर्मेशन। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज तो आप नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे, मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसइंटीग्रेशन। तो हमें पता है कि प्रिमोजेल क्या है, डिसइंटीग्रेंट है और इट्स अ मॉडिफाइड स्टार्च। प्रिमोजेल, एक्सप्लोटैब जो 1 to 8% यूज होते हैं। सो द आंसर इज डी, राइट। ऐसे टिक करके कैंसिल आउट किया करो। देन वी हैव दिस। ओके, लेट मी, ये चारों क्वेश्चंस करो, आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम। Yes, anyone done? कोटिंग का छोड़ दो क्वेश्चन, सुपर डिसइंटीग्रेंट बता दो। Yeah, ma'am. What is, yes, what is the super disintegrant tablet formulation among these 4? Sodium starch glycolate. Absolutely right. ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप, इक्वेशंस वाला? Ma'am, B. Okay, let's not go into this क्योंकि अभी ये नहीं हुआ है। Okay, what about this in tablet? Hydroxypropyl methyl cellulose is used as a HPMC basically. 1. What? I can't hear you. कोई बोल रहा है अगर? HPMC. Okay. It's a binder. Okay, absolutely right. It's a binder. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके बाद और ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विल लुक इनटू। अब नाउ इसका, अच्छा एक काम करो इसको। यस यस Ma'am, I have got one doubt. यस श्योर, गो ऑन। Ma'am, in many of the MCQs ऐसा आ जाता है कि सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट दे देते हैं और ऑप्शन में ना डिसइंटीग्रेंट और सुपर डिसइंटीग्रेंट दोनों डाल देते हैं कि बताओ कि इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा। तो what should be the correct one? Because एग्जाम्पल के उसमें दोनों ही आते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, देखो एक चीज है बहुत ही बेसिक। सबसे पहले अगर सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड देन आपको लिखा सुपर डिसइंटीग्रेंट, ये सब लिखा है, तो अगर लिखा है बोथ ऑफ द अबव, तो यू शुड गो विद बोथ ऑफ द अबव। लेकिन फिर भी अगर वो ऑप्शन नहीं है तो यू शुड गो विद सुपर डिसइंटीग्रेंट। व्हाई? क्योंकि जब आपको प्रिमोजेल या एक्सफ्लोटैब लिखा है ना प्रॉपर्ली ट्रेड नेम, ठीक है, तब यू शुड गो विद डिसइंटीग्रेंट। गेटिंग माय पॉइंट? एज इन की प्रिमोजेल का कि प्रिमोजेल एक्सफ्लोटैब, ओके, इट्स अ सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड इट इज यूज्ड एज अ डिसइंटीग्रेंट, सुपर डिसइंटीग्रेंट, वैसे मेरे हिसाब से बोथ ऑफ द अबव होना चाहिए, पर अगर ऐसा आएगा तो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट टेक इट एज सुपर डिसइंटीग्रेंट। ओके ओके मैम, ओके ओके, एनी अदर डाउट? ओके, ये जो 10 है ना, इनको नोट कर लो बस, ठीक है।
फटाफट नोट कर लो और ये नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, एंड प्लीज बिना देखे करना। चलो अभी ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। व्हाट इज फार्मर जेल? अभी आपने पढ़ा ही ना ये सब। लैकमेन के अंदर जाना, ठीक है, लैकमेन में जाना तो आपको देखेगा फार्मर जेल वगैरह क्या है। बाकी ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, वीगम वगैरह, एम्बर लाइट क्या है। तो दिस इज योर होमवर्क। तो मैं जब स्लाइड शेयर करूंगी तब आप देख लेना, ये मुझे करके नेक्स्ट क्लास में देना, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। कलरिंग एजेंट्स, जो थर्ड पार्ट था, कलरिंग, फ्लेवरिंग, ये सारी चीजें जो हैं। तो बेसिकली हमें पता है कलरिंग एजेंट्स का 3 काम है भाई, मास्किंग ऑफ कलर ड्रग्स, या फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, फिर प्रोडक्शन ऑफ मोर एलिगेंट प्रोडक्ट। गिव मी अ सेकेंड। तो और प्रोडक्शन ऑफ मोर एलिगेंट प्रोडक्ट, कि भाई पेशेंट कंप्लाइंस बढ़ जाए, या फिर मेरी जो ऑलरेडी बिटरनेस, कलर तो इससे डाल जाता है कि अट्रैक्टिव लगे, वेयर अगर फ्लेवरिंग एजेंट या स्वीटिंग एजेंट हम तब डालते हैं जब हमें पता है कि वो ड्रग बहुत बिटर है। Then some of the FDA approved 2 form of colors is FDNC and DNC is drug cosmetics में, and FDNC is food drug and coloring। ठीक है, तो ये दो जो है ये फॉर्म्स ऑफ कलर्स, मतलब इसके अंदर जो फॉर्म्स है, तो अगर ये याद करना यू कैन, बट बहुत सारे तो डोंट गो विद इट, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है? तो हमें डाइज या लेक्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नाउ वेरी क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइज एंड लेक्स? कम ऑन क्विकली, जिसने पढ़ा है। हाँ हाँ, dyes are basically एक सेकंड, दिस इज शिवम, yeah, तो डोंट आंसर। एनीवन एल्स? आज शिवम के अलावा किसी ने नहीं पढ़ा प्री रीड? अच्छा शिवम तुम ही बता दो, और इस क्लास के बाद सब प्री रीड पढ़ के आओगे, पढ़ना, फिर एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू कि क्या आज हमने पढ़ा है। यस शिवम, गो yeah, ऑन। ma'am. So, ma'am, dyes are basically the ones which are derived from natural sources and the artificial sources, and the lakes are basically which are solely from the natural sources, like the pigments we found in the natural pigments. अच्छा ठीक है, बट इन दोनों में से मतलब जो बेसिक इन दोनों का डिफरेंस है कि लेक्स एंड डाइज में से, तो वो बता सकते हो कि एक इनसॉल्युबल है, एक सॉल्युबल है वाटर में? Yes, ma'am. कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है? Lakes are insoluble in water. ओके, एंड डाइज आर सॉल्युबल इन वाटर। Vice versa, ma'am. ओके, कौन बोल रहा है कि लेक्स वाटर सॉल्युबल है या नॉन सॉल्युबल है, क्या है? आप दोनों के दो हुए, तो एनीवन एल्स? मैम लेक वाटर सोल्यूबल। सॉरी, लेक्स आर वाटर सॉल्युबल? यस मैम। ओके, एंड डाइज आर ऑयल सॉल्युबल। एनीवन एल्स? 3 अलग अलग वो, मतलब how many of you think that dyes are water soluble? Can raise your hands or something. जो dyes हैं वो water soluble है? Yes, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? This is your homework. जो वो असाइनमेंट है उसका सेकंड क्वेश्चन ये वाला है कि डाइज और लेक्स में डिफरेंस क्या है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज विद रिगार्ड टू द वाटर एंड ऑयल सॉल्युबिलिटी, ठीक है? तो Dyes are water insoluble. डाइज आर वाटर इनसॉल्युबल। Yes. ओके ओके, दिस इज योर असाइनमेंट, गो ऑन फिगर इट आउट कि डाइज और लेक्स में से कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा ऑयल सॉल्युबल है। अब फॉर एग्जांपल अगर डाइज वाटर सॉल्युबल है, या व्हाट यू सेड ऑयल सॉल्युबल, सो अगर डाइज ऑयल सॉल्युबल है तो हम वो वाले कंटेंट या उन चीजों में मिक्स करेंगे वो जो ऑयली चीजें हो, ताकि वो ऑयल सॉल्युबल इजीली मिक्स होके एक होमोजेनियस मिक्सचर सा बना दे। फेयर? तो डाइज और लेक्स में यही डिफरेंस होगा वाटर और ऑयल सॉल्युबिलिटी का, व्हिच यू विल फिगर इट आउट, और डिपेंडिंग ऑन दैट हम वही वाला सॉल्यूशन लेते हैं उसे मिक्स करने के लिए, ठीक है? Then we have sweetening agents. Sweetening agents we know chewable tablets में mannitol sucrose सबसे ज्यादा यूज होता है। Mannitol is also used as a Diluent.
Yes. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मोस्ट कॉमनली यूज, क्योंकि जिनको शुगर से नेचुरली शुगर से डायबिटीज वगैरह होती है तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देते हैं. नाउ इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सैक्रिन, एस्पार्टेम, नियोटेम, बहुत सारे हैं, बट टू बी फोकस्ड ऑन लाइक सैक्रिन जो होता है 500 टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज. इसका डिसएडवांटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज बिटर आफ्टर टेस्ट एंड कार्सिनोजेनिक. यू नो एवरीवन इज अवेयर ऑफ द वर्ड कार्सिनोजेनिक. Yes, ma'am. Okay, what is it? Yeah, ma'am. Causing cancer. Yeah, agents that causes cancer. So that's a carcinogenic. तो saccharin जो है 500 times sweeter है, ये याद रखना. Aspartame 250 times sweeter है, but it is moisture unstable. Moisture unstable means what is the meaning of moisture unstable? That yes. मॉइस्चर के पैसे में डिग्रेड हो जाएगा. It can degrade in presence of. नॉट डिग्रेड, बट या ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, या फिर जहाँ पे भी होगा कलरिंग कुछ वो कर देगा, डिटोरिएट कर देगा चीजों को, तो वो सब चीज होगा. दैट इज इट इज अनस्टेबल, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. ओके. देन ऑल्सो यू नो कि ये इतना ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है कि जो भी जहाँ भी एस्पार्टेम यूज होता है. तो अच्छा, एक और चीज है. थर्ड क्वेश्चन असाइनमेंट का, फर्स्ट क्वेश्चन तो जो आपको बताया था ट्रेड नेम्स का, सेकंड इज डाइज एंड लेक्स. थर्ड क्वेश्चन इज कि एस्पार्टेम स्पेसिफिकली एक डिजीज है, उसके साथ नहीं यूज करवाते, तो वो कौन सा डिजीज है एंड क्यों? किसी को पता है कौन सा डिजीज है? नहीं पता, इट्स टोटली फाइन, बट वो करके पता करके आना कि इसका ड्रॉबैक है कि एस्पार्टेम स्पेसिफिकली एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो एक डिजीज के साथ यूज या डिसऑर्डर डिजीज के साथ यूज नहीं करते. मतलब जिस पेशेंट को वो चीज होती है, ठीक है, तो हम उसको नहीं बोलते कि एस्पार्टेम नहीं देना है क्योंकि टॉक्सिसिटी हो जाती है. तो कौन सा डिजीज है एज वेल एज क्या रीजन है उसका. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. ओके मैम. Then flavoring agents with flavor oils वगैरह 0.5 to 0.75 concentration. Then we have preservatives, methyl and butyl parabens, benzalkonium chloride, surfactants जो wetting agents होते हैं जो promote करते हैं wetting को. Example सबसे common है wetting agent SLS. What is the full form of SLS? Sodium lauryl sulfate. Yeah, sodium lauryl sulfate is the फुल फॉर्म. अच्छा बता दो तो प्रिजर्वेटिव्स की यूज करते हैं, वेरी बेसिक रीजन. यस, व्हाई डू वी यूज प्रिजर्वेटिव्स? And to preserve the formulation. टू प्रिजर्व एज इन किस सेंस में? मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, राइट? Yes, ma'am. यस, लॉन्ग टाइम के लिए कंटामिनेट भी ना हो, ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में मतलब ज्यादा देर तक रह ले. ठीक है. लास्ट में हमने डिस्कस करता कि प्रिजर्वेटिव्स इसमें डाले जाते हैं, ठीक है, बट ये लिक्विड फॉर्मुलेशन से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस कम है इसमें. ओके. सो अब ये है कुछ कॉमनली यूज एक्सिपिएंट्स विद एडवर्स इफेक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे लैक्टोज है तो उसका फंक्शन डाइल्यूएंट होता है, बट मैंने तुम्हें बताया कि शुगर्स वो भी अमाइन शुगर्स के साथ, और वो भी स्पेसिफिकली जिनमें अमाइन ग्रुप्स होते हैं ना, अमाइन या एल्कलीन ग्रुप्स, उनके साथ ही नहीं करते क्योंकि ये मिलियार्ड रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, मिलियार्ड रिएक्शन शो करते हैं व्हिच इज बेसिकली ब्राउनिंग या डिस्कलरेशन. देन अभी मैंने लिख ही दिया है, एस्पार्टेम जो है वो स्वीटनर है. फिनाइलकेटोनुरिया जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ नहीं दिया जाता. नाउ रीजन वो आपको ढूंढना है, ठीक है. तो फिनाइलकेटोनुरिया के साथ नहीं दिया जाता एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर. बेंजलकोनियम क्लोराइड अ प्रिजर्वेटिव, तो इसको ध्यान से यूज करना है क्योंकि ये ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्रोंकाई की कॉन्स्ट्रिक्शन करता है एंड ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी करता है. व्हाट इज मीन बाय ऑक्यूलर? Related to eyes. यस, तो ये ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी करता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ड्रॉबैक्स को याद करना है. टाट्राजीन ये कलरिंग एजेंट होता है और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर देता है. प्रोपाइल गैलेट, अब एक्सिपिएंट्स को मैंने बहुत बेसिक बताया, आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत जगह डलता है. तो एक एंटीऑक्सीडेंट जैसे कॉमनली विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो प्रोपाइल गैलेट भी एंटीऑक्सीडेंट जो कि स्किन रिएक्शंस कॉज कर देता है. सोडियम मेटासल्फाइड इज आल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट जो हाइपर सेंसिटिविटी कर देता है. तो दीज आर सम ऑफ द एक्सिपिएंट्स एंड रिलेटेड उसके फंक्शंस एज वेल एज कि उसके साथ कॉशन से क्या-क्या चीजें रखनी है. तो जो भी एस्पार्टेम के इसमें एक तो मॉइस्चर वाली चीज आ गई है और एक फिनाइलकेटोनुरिया पेशेंट्स के साथ नहीं देते हैं.
ठीक है। देन अब आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग में, वी डू स्टिल हैव सम टाइम, तो हम लोग क्विकली इसके बारे में देखते हैं। ग्रैनुलेशन, ग्रैनुलेशन प्रोसेस में आ जाओ अब आप, जब हम प्री फॉर्मुलेशन स्टेज में थे, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में थे प्री फॉर्मुलेशन की, तो हमने प्री फॉर्मुलेशन में क्या करा, अपना देख ले कैसे पाउडर चाहिए, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज के अच्छी है या नहीं है, जैसे भी हैं। उसके बाद आता है ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन हम क्यों करते हैं कि बेसिकली जब मैंने पाउडर फॉर्म में लिया तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो होंगे और डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग पार्टिकल्स टुगेदर बाय क्रिएटिंग बॉन्ड्स बिटवीन देम। एंड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स या कंप्रेशन से। तो ग्रैनुलेशंस का एक मोटिव ये भी होता है कि सपोज मेरे पास मैंने एपीआई लिया कोई, और वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं, तो पहले तो मैं उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रैनुलेट करूंगी ताकि वो एक इक्वल साइज रेंज में आ जाए, जो कि प्रेफर करते हैं ग्रैनुल्स की साइज रेंज 0.2 to 4 mm के बीच में हो, ठीक है। क्योंकि ग्रैनुल्स का साइज देखो एग्जैक्ट सेम तो हो नहीं सकता कि 0.2 है तो सारे पार्टिकल्स का साइज 0.2 होना चाहिए, तो इज इट नॉट पॉसिबल, राइट। देन नेक्स्ट थिंग इज कि हमें इसको इसलिए करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स को साथ में लाएं, एंड इस स्टेज पे हम बाइंडिंग एजेंट डालते हैं। जब सारे ग्रैनुल्स एक शेप के आ जाएंगे तब हम उस स्टेज पे बाइंडर्स डालते हैं, ताकि पार्टिकल्स के बीच में जो मैंने बताया था इंटर पार्टिकल कोहेजन रहना चाहिए, मतलब वो चीज रहे, पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड रहना चाहिए। इस स्टेज पे हम बाइंडिंग एजेंट डालेंगे और फिर हम कंप्रेशन करेंगे। So why do we prepare granules when we have a powder? So to avoid segregation of powder, mixed segregation may result in weight variations, कि हमें अलग अलग ना रहे पार्टिकल्स, क्योंकि अगर जहाँ पे मेरे ग्रैनुल्स कुछ मोटा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, मेरा जैसे टेढ़ा, देखो शेप्स का वी आर लीस्ट कंसर्न इज अबाउट द साइज। शेप तो हमें पता है कि स्फेरिकली अल्टीमेटली आ जाएगी जब हम उसको बहुत छोटे छोटे ग्रैनुल्स बना लेंगे, बट हमें उसको अलग अलग टाइप का वेट वेरिएशन नहीं रखना है, एक रेंज सही है उसमें रखना है। To improve the flow properties of the flow means higher flowability gives better filling of the dyes. Dye cavity में compaction सब में बहुत आसानी होती है। To produce uniform mixtures and to produce dust free formulations, ताकि कि एक ईज से एक छोटे साइज का पाउडर बिल्कुल अच्छे से कर लिया, जैसे आपने देखा है कभी पीसीएम देखना, उसको कभी तोड़ने की कोशिश करना, आपने देखी है उसकी पाउडर फॉर्म कितनी ज्यादा फाइन होती है। दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि फाइन पाउडर है वो, तभी उसे ग्रैनुलेशन स्टेज पे तो ज्यादा ग्राइंड तक ग्रैनुल्स को तब छोटा छोटा पार्टिकल साइज किया होगा, तभी उसकी कॉम्पैक्शन बहुत अच्छी है। देन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्रैनुलेशन? तो ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत है क्योंकि ये उस सेंस में केमिस्ट्री सेंस में चले जाएगा, बट जस्ट इसमें आपको टाइप पता होना चाहिए कौन सी मैकेनिज्म है, कि पहले इमोबाइल लिक्विड फिल्म बनेगी, फिर एक मोबाइल फिल्म बनती है, फिर सॉलिड ब्रिजेस, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे ये स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स है, ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल इमेजिन करना, ठीक है। अब इनके बीच में ऑलरेडी वंडर वॉल फोर्सेस होती है, अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अब क्या, सपोज सबसे पहली स्टेट होती है ड्राई स्टेट, जब ग्रैनुअल्स नहीं है, जब अलग अलग मोटे, मतलब किसी की शेप वेरी कर रही है, हर किसी की अलग अलग शेप है। जब मैंने इसको ग्रैनुलेट करती हूँ, सबसे पहले स्टेट आती है पेंडुलर स्टेट, ठीक है, जहाँ पे कि लिक्विड, मैं हल्का सा लिक्विड भी डालूंगी ग्राइंडिंग के टाइम पे, ठीक है, थोड़े बाइंडर्स, बाइंडिंग एजेंट्स भी डालूंगी लिक्विड फॉर्म में ताकि उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़े, लेकिन बहुत ही हल्का। तो पेंडिकुलर या पेंडुलर स्टेज होती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ब्रिजेस बनने लग गए हैं पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ पे मॉइस्चर लेवल कम होता है। उसके बाद मैं इसको और ग्रैनुलेट करूंगी और थोड़ा सा बाइंडिंग एजेंट्स डाले मैंने, तो फिर क्या हुआ, वो फिनिकुलर स्टेट में आ जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक आती है कैपिलरी स्टेज। कैपिलरी स्टेज में आप देख सकते हो और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ने लग गई है, ठीक है। कोई बाहर की एयर, यहाँ पे एयर एंट्रैपमेंट जो है, जो गैप्स है, वो अब फिल हो गए हैं पूरे। फिर एक होती है सस्पेंडेड स्टेज, जिसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग कैपिलरी स्टेज में ही ना जल्दी से ड्राइंग कर देते हैं और इमीडिएटली कॉम्पैक्शन कर लेते हैं। सस्पेंशन मतलब अगर आपने ज्यादा देर तक रख लिया ना कैपिलरी स्टेट, तो सस्पेंडेड स्टेट हो जाती है। उसमें क्या होता है, इट इज यूजुअली अनडिजायरेबल, कई बार यूजफुल भी होती है व्हेन ग्रैनुलेशन डन बाय स्प्रे ड्राइंग ऑफ अ सस्पेंशन। तो बेसिकली क्या होता है, हमें ना इनके बीच में इंटरेक्शन चाहिए, हमें से कोई ज्यादा बाइंडिंग एजेंट, ज्यादा लिक्विड फॉर्म में अपने ग्रैनुल को सस्पेंड करके नहीं रख देना है, हमें जस्ट पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन चाहिए, दैट्स इट। हमें उसको सस्पेंशन, जैसे आप लोगों ने इमेजिन करा होगा सस्पेंशन, हमें सस्पेंड नहीं कर देना उससे बाइंडिंग एजेंट्स में,
मेरा बाइंडिंग एजेंट मैंने कोई लिक्विड फॉर्म में डाला है उसको, तो मैंने जस्ट इससे थोड़ा अमाउंट का डाला ताकि उसमें पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन रहे, rather than getting into a suspended form. ठीक है, अगर सस्पेंडेड फॉर्म कभी आ भी गई गलती से तो उसको ड्राइंग कर दे ताकि वो इस कैपिलरी फॉर्म में आए। तो कैपिलरी इज द मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म। इसमें हम थोड़ी हल्की सी ड्राइंग करके क्या करते हैं, कंपैक्शन में ले जाते हैं, कंप्रेशन करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ, कि हम उसे पूरा ग्रैन्युलेट करके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे बढ़ाएं। अंडरस्टूड द 4 स्टेजेस? Yes, any doubt? ये स्टेजेस याद करना जरूरी है, एज इन कैसे कि पेंडिकुलर पहले आती है, फिर फेनिकुलर, फिर कैपिलरी। कैपिलरी इज द मोस्ट डिजायरेबल, वेयरएज पेंडिकुलर में कम मॉइस्चर लेवल एंड एयर एंट्रैपमेंट देख रहे हो अभी प्रेजेंट है। उसके बाद धीरे धीरे करके फेनिकुलर में कम हो रहा है। सो कैपिलरी इज द मोस्ट डिजायरेबल। देन सस्पेंशन में कोशिश करना है कि नहीं आना, अगर आ गया तो ड्राइंग करनी है इमीडिएटली, ताकि वो जो बाइंडिंग फॉर्म का जो लिक्विड है वो इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, एनी डाउट? यस, एनी डाउट? शिवम, प्रणव, एनी डाउट? नो मैम। तो लेट रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? Anyone else? Any doubt? Anything you want me to repeat? Ma'am, how are sustained and controlled release tablets designed? How are sustained and controlled release designed? Yes, ma'am. बेसिकली जब हम टैबलेट कोटिंग पढ़ेंगे, जब हम ना उसमें कोटिंग ज्यादा कर देते हैं और हम उसमें, अब आप खुद बताओ, फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे उसमें डिसइंटीग्रेंट कम डालूंगी, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं उसमें बाइंडर्स ज्यादा डालने की कोशिश करूंगी ताकि ज्यादातर बाइंड रहे। दूसरी बात है, मैं उसे ऐसे फॉर्मुलेट करूंगी, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एंट्री कोटेड की बात करती हूँ। एंट्री कोटेड में क्या हुआ कि मुझे वो जो रिलीज है ड्रग का, मुझे वो स्टमक में नहीं चाहिए, मुझे वो इंटेस्टाइन में चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे उसकी प्रॉपर्टीज को मॉड्यूलेट करूंगी कि वो जो स्टमक की पीएच है, जो स्टमक की एनवायरमेंट है, उसमें जाके रिलीज ना हो। स्टमक की एनवायरमेंट क्या है? एसिडिक। तो एसिडिक एनवायरमेंट में रिलीज ना हो, मैं उसको ऐसे फॉर्मुलेट करूंगी कि उसका जो पीएच है वो मतलब जब वो रिलीज कब हो, डिसइंटीग्रेट कब हो, जब वो एल्कलिन पीएच से अटैचमेंट हो, विच इज मतलब एंट्री कोटेड। तो हम उसकी कोटिंग ऐसे करते हैं, उनको हम ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं, उनको हम ड्रग्स को ऐसे टैबलेट्स में करते हैं कि इस टाइम पे फर्स्ट ड्रग ऐसे रिलीज हो। वो सब मैकेनिज्म है ड्रग डिजाइन का, कि हम कैसे ड्रग, दिस इज नॉर्मल कंप्रेसिबल, हम टैबलेट्स कैसे बनाते हैं, वेयरएज वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हमें एक्सिपिएंट्स कैसे यूज करना है, या फिर हमें कैसे उसको सस्टेन बनाना है, कैसे हम इसे कौन से, सपोज फॉर एग्जांपल जब हम उसमें अभी नॉवल ड्रग डिलीवरी पढ़ेंगे आगे जाके, तो हमें पता है हमें टारगेटेड, अब सपोज टारगेटेड मतलब मुझे कोई लिवर के पार्ट में जाकर रिलीज होनी चाहिए, तो वो कैसे बनाओगे वो ड्रग को? आप तब बनाओगे जब आप देखोगे कि आप वो ऐसा प्रोटीन अटैच कराओगे उस ड्रग के साथ जो कि उस जाके रिसेप्टर, पर्टिकुलर रिसेप्टर में जाके अटैच हो। सो ये हम सारी चीजें आगे ड्रग डिलीवरी इन सब में पढ़ेंगे। Okay, ma'am. Thank you. Okay. Any doubt, anyone? Okay, तो बहुत सारी मिल्स, जैसे मैं बताया था कि हमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी मिल्स जो हमने पहले पढ़ी होंगी आपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, फ्लूइड एनर्जी, कोलाइडल मिल्स, बॉल मिल्स, कटिंग मिल, रोलर मिल्स, बहुत सारे यूज होते हैं। ब्लेंडर्स, why do we do it? To achieve optimum mixing. Mixing is highly important of different ingredients in a powder at pre and post granulation state. तो ब्लेंडर्स भी यूज होता है, which is used as a mixing. तो मिक्सर्स, डिफ्यूजन ड्रम ब्लेंडर्स, रिबन ब्लेंडर्स, ये सारे यूज होते हैं। इनके रिस्पेक्टिव ड्रॉबैक्स भी हैं, लाइक सेग्रीगेशन में दिक्कत दे, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन मिक्सर्स जो होता है अलग अलग करने लग जाते हैं, सेग्रीगेट करने लग जाते हैं, कि जो मोटा पार्टिकल है पाउडर फॉर्म उसको अलग कर दिया, छोटे को अलग कर दिया। सो दैट्स न्यूमेटिक ब्लेंडर्स होता है जो कंटेन यूनिफॉर्मिटी। बेसिकली इन सब में क्या होता है, अब देखो कन्वेक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवर मिक्सिंग हो जाती है लुब्रिकेंट के साथ, तो सबके इंडिविजुअल्स है, बट ये ब्लेंडर्स, मिक्सर्स, मिल्स, ये सारे हमें यूज करते हैं मिक्सिंग एंड
अच्छे से हमें ग्रैनुलेशन के लिए हेल्प करते, सारे इक्विपमेंट्स हैं ये। ठीक है, फिर ये फ्रॉम डायरेक्ट कंप्रेशन हम 3 टाइप के पढ़ेंगे। एक होता है डायरेक्ट कंप्रेशन की बस आगे कंप्रेस कर दे, एक होता है ड्राई ग्रैनुलेशंस और एक होता है वेट ग्रैनुलेशंस। अब ड्राई एंड वेट में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्री रीड दूंगी, उसको पढ़ना जरूर कि क्या है। और अभी आज सिर्फ 1 या 2 बच्चों ने प्री रीड पढ़ा था, तो प्लीज जाना वापस और प्लीज इसको पढ़ना प्री रीड को, तो उससे आपको पता चलेगा कि आज हमने इसका डिस्कस करा था एक्सिपिएंट्स के बारे में। ठीक है, एनी डाउट? और जो 3 क्वेश्चंस हैं वो करना। ओके, एनी डाउट एनीवन? No, ma'am. No, Okay, ma'am. so we can conclude the class. Thank you for joining. Thank you, ma'am. Thank you, No, ma'am. ma'am.